Greetings to all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I extend my sincere thanks to you all for allowing me this time. For today's short meditation, let us turn our attention to Philippians chapter 2, verses 12 and 13. Here Apostle Paul is addressing to the believers in Philippi. It reads, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure." Here Apostle Paul used the term work out, which means to continually work to bring something to completion. Dear children of God, we being a born-again Christian are going through the process of sanctification while we are in this world and waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. While we are living in this fallen world, we need to cultivate our salvation. That is to take care and protect our salvation which we received only by the grace of God, not by any of our deeds. 1 Peter 1:18 and 19 reminds us that neither it was perishable things such as silver or gold, nor any of our aimless conduct received by tradition from our fathers which caused redemption in our life, but with the precious blood of Jesus Christ, who was without sin. If Jesus Christ, who being in the form of God, left his heavenly abode and made himself of no reputation, he took the form of a bond servant and became obedient to the point of death of the cross for our sake, then as a child of God, we should have a serious caution and critical self-evaluation to avoid anything that might offend God or discredit the name of our Christ Jesus. In the epistle of Jude, verses 3 and 23, Holy Spirit teaches us to contend earnestly for the faith and stressing on our holiness. Holy Spirit wrote there, while saving others hate the garment defiled by the flesh, which is their sinful deeds. Dear children of God, in Hebrews 12, verses 12 to 17, Holy Spirit instructs us about how to renew our spiritual vitality, stating an example of Esau, who sold what was entrusted to him from God, that is his birthright, for mere one morsel of food. Later on, he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears. This shows us how intensely and carefully we should lead a holy life in our Christian journey. We have to labor earnestly to make sure of our salvation. If we look into 2 Timothy chapter 3, verses 15, by knowing the Holy Scripture, one can become wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. As the children of God, we should meditate the Word of God, wherein we can renew our hearts and our minds. Also ask for God's grace in our daily prayer so as to lead a victorious Christian life. Emphasizing much on the grace of God, Apostle Paul wrote in many of his writings, like 1 Corinthians 1:26-31, that we children of God are called and chosen in Christ Jesus when we were unworthy, so that no one should glory in God's presence, rather glory in Christ Jesus, who became wisdom from God for us through our righteousness, sanctification, and redemption. So let us glory in the Lord for this life in Christ Jesus. Even though Apostle Paul worked diligently for the kingdom of God, he wrote in 1 Corinthians 15:10, "By the grace of God I am what I am, and his grace towards me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me." This morning, let us renew our heart and our mind in Christ Jesus. Relying on the grace of God, let us labor earnestly to make sure of our salvation with serious caution and critical self-evaluation in our day-to-day life. Along with Apostle Paul, let's say, "I press on, that I may hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me." Have a blessed day. प्रिय प्रभु के लोगों, फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय की 12वीं और 13वीं आयत में प्रेरित पौलुस लिखता है, हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ।
क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। यहाँ पे प्रेरित पौलुस लिखता है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। प्रियजनों, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, यह दुनिया पाप से घिरा हुआ है, पर हम मसीही लोगों के लिए नियमित रूप से पवित्रता में जीवन बिताना जरूरी है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना अनंत जीवन बिताएं। हम उद्धार तो पा चुके हैं, परंतु इस मसीही जीवन में आत्मिक रूप से विकसित होना हमारे लिए अनिवार्य है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये हमारे कर्मों के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर का दान है। पहले पत्रस 1 अध्याय उसका 18 और 19वीं आयत में पवित्र आत्मा लिखता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमारे प्रभु यीशु जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर को तुल्य को होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, पर प्रभु यीशु ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में प्रभु यीशु मसीह जग में आए। यीशु ने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जब प्रभु यीशु ने मानव जाति के उद्धार के लिए इतना कष्ट सहा, तब हम प्रभु के लोगों को कितना अधिक सावधानी और आत्म मूल्यांकन यानी कि खुद को जांचते हुए यह जिंदगी बिताना है कि कहीं कुछ मेरी जिंदगी में प्रभु को कष्ट पहुंचाने या प्रभु के नाम को बदनामी में डालने वाले कार्य न हो जाए। यहूदा की पत्री उसका 3 और 23 आयत में पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि विश्वास के लिए पूरा प्रयास करो और पवित्रता से जीवन बिताने के लिए जोर देते हुए पवित्र आत्मा लिखता है कि पापी जन को पाप से बचाते हुए उस वस्त्र से घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है, यानी कि उसके पाप से घृणा करते हुए हमें उस पापी को बचाना है। हमें ईमानदारी से परिश्रम करते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाना है। हमें आत्मिक अनुशासन सिखाते हुए इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में चेतावनी देते हुए पवित्र आत्मा लिखता है कि एसाव की नाई कोई अधर्मी ना बने, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठा होने के पद को बेच डाला जो कि उसे परमेश्वर की ओर से सौंपा गया था। बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर कोसने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। यह हमें सिखाता है कि हमें कितने सतर्क से हमारी आत्मिक जिंदगी हमें इस दुनिया में बिताना है। हमारे उद्धार का स्रोत प्रभु का वचन ही है, जैसे कि 2 तीमुथियुस 3 और उसका 15वीं आयत में पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि पवित्र शास्त्र ही हमें मसीह यीशु में उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। प्रभु के वचन का अध्ययन मसीही लोगों के लिए अनिवार्य यानी कि बहुत ही आवश्यक है। इसी से ही हमारे हृदय और बुद्धि का मसीह यीशु में नवीकरण होता है। प्रेरित पौलुस ने अपने लेख में कई जगह प्रभु के अनुग्रह को जोर देते हुए लिखा है, जैसे कि 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 26 से लेके 31 आयत तक, हमारी बुलाहट तब हुई जब हम अयोग्य थे, परमेश्वर ने हमें चुना जबकि हम से भी कई योग्य जन थे। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि हम कोई भी जन उसके सामने घमंड न करे, पर प्रभु यीशु पर ही घमंड करे जो कि हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, जो कि इस मानव जाति के लिए जरूरी था। इसी कारण प्रेरित पौलुस सब महिमा प्रभु के अनुग्रह को देते हुए 1 कुरिन्थियों की पत्री 15वीं अध्याय उसके 10वीं आयत में लिखता है, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ और उसका अनुग्रह जो मुझ पर है वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था यह संभव हुआ। आज प्रभु के अनुग्रह पर भरोसा करके सावधानी से अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाएं। दिन प्रतिदिन अपने आप को प्रभु के वचन के अध्ययन के द्वारा जांचते रहें।
प्रेरित पौलुस के साथ हम मिलकर कहें कि जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था उसको अपना बनाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। इस संदेश से प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीषित करे।